Yes, we are live on Facebook also. Akshat, you can check on Facebook if anyone wants to. All right. And Akshat, I will post you the link. You can forward it to Chakor sir. Yeah, fine. Neeraj bhai, please send it to Chakor sir and Hitasvi as well. I will send it to Hidresvi. I don't have Chakor sir's number. So I will. Okay. So no problem. Let's begin now. If we are live on Facebook, let's begin. Let's begin. Yeah. Good to go, sir. Yeah. All right, Ritika, are you ready? Yeah, fine. Let's begin with this then. Okay. Jai Jinendra and good evening to everyone. I, Ms. Ritika Patil, welcome you all on behalf of Jito Youth Wing Kolhapur for the very first webinar of Jito Youth Wing. Today amongst us a very unique personality, Mr. Chakorji Gandhi. I would like to start the session by reciting Namokar Mantra. So please let's recite Namokar Mantra silently. Thank you. I also welcome our Jito Youth Wing Kolhapur Chapter Chairman, Mr. Akshat Shah, Secretary, Mr. Chintan Rathod, and Treasurer, Mr. Puneet Kothari. I request our Youth Wing Chairman, Mr. Akshat Shah, please address a welcome note to our honorable guest and our today's viewers. All right, thank you, Ritika. A warm welcome to all the participants joining us for this webinar, and a very warm welcome to Chakor sir. And thanks a lot, Chakor sir, for accepting our approach to shower your potential knowledge on youths. And I'm sure that this shower of knowledge is going to definitely fill up the gaps in understanding the future and the new concepts related to the business perspectives. Like when during this pandemic, there are a lot of things and life hacks which we have got a thought of. And just giving a thought, like there are a lot of questions coming up in these days about considering the future of our business, our life. And when we say India is the youngest country, considering the largest youth population in the world, we say India is the youngest country. But there's one more question, that have we thought about that India is going to be the largest retired country? The number of retirements in our country in future will be similarly, simultaneously we are young, there will be a period when we'll be having a large number of retirements. So, are we planning our future, our business, considering that? So, there are a lot of things like we need to upgrade ourselves from the traditional business workouts. Also, many will say that, there's a monopoly of their brand and they think that they can go with the traditional business. But I think the monopoly, the life of the monopoly, the survival of the monopoly has its own time. And that's why changing with the time, with the business standards is very much necessary for us. So today we have got an opportunity to, get a guideline from a very powerful business coach and a mentor, Mr. Chakor Gandhi, sir. Sir, I welcome you on behalf of whole Jito Youth Wing, Kolhapur. Thank you so much. Ritika, please take the charge. Thank you, Akshat. Today we are privileged to have you here, sir, for the very first webinar of Jito Youth Wing Kolhapur. Mr. Chakor Gandhi is well educated with the DME and MBA degree and is self-employed with the industrial experience of more than 30 years. A unique personality with passion of knowledge and teaching and using unique methodology for interaction. Mr. Gandhi addresses the society with different topics like women empowerment, changing trends in business and education. Mr. Gandhi is keen towards education and is a member of Government Council for 4 colleges and 1 hostel. Specialized in subjects like marketing, CRM, introduction program, distribution management, entrepreneurship, and industry interface. He has a leading role in trading, distribution, manufacturing, and retailing. He has partnered worldwide with multinationals and shares a status of marketing and logistical partnership. His work has been appreciated by Umed Jain Samaj by giving Samaj Ratna Puraskar and also Vyapar Bhushan for his achievements. He's a unique person with passion and blend towards education, society, and business.
Today, Mr. Chakorji Gandhi will be addressing us about the today's changing scenario of business and our next step towards the business due to this pandemic of COVID-19. I request Mr. Gandhi to please continue and for the most awaited session of our today's webinar. Yeah. Thanks, Ritika, for your introduction. It's a great pleasure, Akshat, to be here in a webinar for Jito Youth Kolhapur, and pleasure to welcome Chintan, Puneet, and all the office bearers of Jito Youth, and all of you who have taken out time to come on this webinar. It's a great pleasure. मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा क्योंकि काफी लोगों को हिंदी चाहिए होता है, बट इफ यू टेल मी you want in Hindi, English, or Marathi, Akshat, what is it that you would like me to speak? So you can go with the Hindi because we are having many participants from Karnataka, Okay. Gujarat, and all. So Hindi comfortable रहेगा सबके लिए आएगा. ओके, मैं इस विषय में मैंने अभी तक ये 16वां वेबिनार है. मैंने काफी ग्रुप्स के लिए, एसोसिएशन के लिए, जीतो के लिए, जेबीएन के लिए इसके वेबिनार किए, और मेरी और अक्षत की बात हुई और अक्षत इमीडिएटली उन्होंने ये अरेंज किया. इन दिनों में हर एक के दिमाग में, और मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैं मेंटोरिंग करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ बिजनेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड ज्यादा करके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इस विषय में, और चेंज मेरा विषय रहा है. मैंने अभी तक काफी प्रोग्राम गए 5 सालों में ऑल ओव्हर इंडिया. सावधान धंदा बदल रहा है. सावधान धंदा बदलतोय या विषयावर खूप आतापर्यंत वर्कशॉप्स केले, प्रोग्राम्स केले, ज्याला 800-1000 लोक असतात. त्यात मी महत्वाचं नाही, मैं इम्पॉर्टंट नहीं हूँ. ये इम्पॉर्टंट है कि बिजनेस चेंज होता है, लेकिन बिजनेस चेंज होता है तो इस हद तक चेंज होता है, ये मुझे भी कभी मालूम नहीं था. मैं तो अब तक के जो एग्जाम्पल थे उसके ऊपर बात करता था, लेकिन इस हद तक जहां पूरी दुनिया 2 महीने लॉकडाउन में है, पूरी इकोनॉमी चेंज होने जा रही है, काफी नई बातें होने जा रही है जो पहले कभी मिसाल ही नहीं है. तो अब तक हमने कोरोना, कोविड-19, कोरोना, इसके बारे में बहुत जानकारी है सबको, और हम हर एक घंटे में कितने केसेस हो गए, आज कितने केसेस हो गए, ये सब जान रहे हैं. सबसे पहले तो मोदी जी हमारे पंतप्रधान, और इस देश ने बहुत कमाल का काम किया है. पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, और इन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, नहीं तो पूरी दुनिया कहती थी कि ये 130 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ इलिटरेट लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये देश कैसा कंट्रोल कर पाएगा. लेकिन इंडिया ने एक मिसाल दी कि हम लोगों ने कैसा कंट्रोल किया और बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है. तो सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑल गवर्नमेंट, और हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, जो स्टाफ हमारे लिए दिन भर काम कर रहा है, पूरे दिन काम कर रहा है, पुलिस फोर्स है जो अपनी फिक्र, खुद की फिक्र ना करते हुए लोगों के लिए काम कर रहे दिन रात. और हम तो देख रहे हैं कितने पुलिस आज कोरोना के विक्टिम्स हो गए, कितने डॉक्टर्स, नर्सेस, फिर भी वो सामने आके काम कर रहे. पूरे समाज ने भी बहुत काम किया, जहां हो सकता है जीतो ने और पूरे समाज ने हेल्प के लिए आए सामने. तो ये सब के लिए तो मैं सैल्यूट करूंगा. इनके वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित है. और इस बारे में और 2 महीने का लॉकडाउन, 2 महीने से भी ज्यादा लॉकडाउन कई जगह चालू हुआ, तो हम लोग अंदर से डरे हैं. और जब अंदर, यानी तो आर्मी उतरती थी तो भी हम लोग शायद घरों में नहीं बैठते थे. तो हम लोग, एक अच्छी बात है कि हम अंदर से डर गए. सब न्यूज देख रहे हैं, इतना मीडिया पावरफुल है, तो हमने अपनी प्रिकॉशन ली. फिर हम अंदर से डरे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, पूरे स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए, और पूरे विश्व के लिए. तो ये इससे तो हम गुजरे हैं. मैं एक बात कहता हूँ कि यदि शायद ये वेबिनार हम 2 महीने पहले लेते थे और टॉपिक लेते थे कि लॉकडाउन कैसे होगा,
तो हम लोग वो भी सोचते थे कि भाई लॉकडाउन में हम क्या करेंगे, हमारे वजन कितने बढ़ जाएंगे, हम घर का पता भूल जाएंगे, हम बाहर का दरवाजा भूल जाएंगे, हम 2 महीने घर पे कैसे बैठेंगे, ऐसे सोचते थे। तो ये शायद बातें हम सोचते थे। आज हम लॉकडाउन के बाद की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन करीब करीब अभी धीरे धीरे खुलेगा, खुलना चालू हो गया है। और तो हमारे मन में जैसे कोरोना की हम न्यूज़ देखते थे, धीरे धीरे हम लोग अभी बिजनेस के बारे में सोचने लगे हैं, करीब 8, 10, 15 दिन से। अभी हमारा ध्यान कोरोना के न्यूज़ के साथ में इकोनॉमी के न्यूज़ के ऊपर भी आ गया है। रोज हम पढ़ रहे हैं कौन सी इकोनॉमी, कौन से बिजनेस में क्या होने वाला है, इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, जहाँ चालू हुआ क्या होने वाला है। एक एक जबरदस्त प्रश्न, एक सवाल था लेबर घर जाने का। तो अभी धीरे धीरे वो काम भी होने लगा है। अभी वो घर पहुंचेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, फिर आने की बात करेंगे। वो एक बड़ा सवाल सबके सामने है कि लेबर कब वापस आएगा, कब पहुंचेगा। तो काफी दिन तो उसमें भी हम उलझे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस हिसाब से भी काम किया है। अभी फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रहे हैं। तो ये मन में आने लगा है कि अभी बिजनेस का क्या, मेरा क्या होगा। अभी हमारे हेल्थ के बाद में वो तो है सवाल, आज भी हम केयर ले रहे हैं। तो अभी बिजनेस का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सवाल नेचुरली अपने मन में आने लगे। तो एक अच्छा सेंटेंस किसी ने, शायद अजीत भाई ने कहा था कि ये पॉज बटन है, स्टॉप बटन नहीं है। कई बार हम मन में ये सोचने लगते हैं कि भाई ये सब बंद होगा क्या, ये सब एकदम खलास होगा क्या। तो ऐसा नहीं है, ये स्टॉप बटन नहीं है, पॉज बटन पॉजिटिवली है। और पॉज बटन खुलेगा, एकदम पूरा देश पूरा विश्व लॉकडाउन में गया, तो चालू करने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। आप बड़ा प्लांट है। कैन यू अनम्यूट, समवन इज टॉकिंग इन बिटवीन, आई थिंक सो, देख लीजिए। सो एकदम से बंद हुआ देश, एकदम चालू करना भी पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मशीनरी होती है, प्लांट होता है, तो धीरे धीरे चालू करना पड़ता है। तो वो इस प्रोसेस में हम है। तो मुझे एक व्हाट्सएप आया था, शायद व्हाट्सएप में ऐसा लिखा है कि विंस्टन चर्चिल ने ये सेंटेंस लिखा था कि नो क्राइसिस शुड गो वेस्ट, नो क्राइसिस शुड गो वेस्ट, कि इस संकट में भी हम क्या कर सकते हैं। और मेरे इस आज का वेबिनार टॉपिक में ऐसे भी बोलता हूँ, बंदी में क्या संधि है। तो हम इस क्राइसिस में क्या सोच सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। हमको 2 चॉइस है कि या तो हम प्रॉब्लम देखते बैठे और दिन भर बस वही देखते रहे, ये इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई, वो इंडस्ट्री बंद हो गई, इतने कामगार कम किए, ये इतनी इकोनॉमी जीडीपी माइनस में गया। ठीक है, ये न्यूज़ है, ये मानता हूं मैं। या दूसरी जगह साथ में हम लोग सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान दें। But we have a choice either to focus on the problem or focus on the solution. So once you start thinking about the solution, सबके मन में डेफिनेटली सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसे टाइम में देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई क्राइसिस आता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपके घर की, तो आप बाहर जाके पहला देखते हैं कि सबकी गई है या खाली मेरे घर की गई है। जब सबकी गई होती है तो आप थोड़ा शांति से बैठते हैं कि जब आएगी सबकी आएगी। खाली जब आपके घर की जाती है तो आप भागते हैं कि भाई मेरे घर में क्या है, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे घर में नहीं है। तो अब की बार जो हुआ है पूरे विश्व के साथ हुआ है, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, सब पूरी विश्व में ये साथ में हुआ है। तो एक हमारे साथ में एक हमको एक बात मन में आती है कि चलो भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी हो रहा है पूरी दुनिया के साथ में हो रहा है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो ये एक थोड़ी सी बात अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस देती है, मेंटल पीस देती है। तो ऐसे हेलो, शंकर पाटील साहेब, शंकर साहेब जरा प्लीज म्यूट करता का? या सो नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि ऐसे टाइम में, कोई भी क्राइसिस में, पहला तो क्राइसिस शुड नॉट गो वेस्ट। आज अब भी ध्यान में रखिए, ये क्राइसिस हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं जरूर कहना चाहूंगा क्या कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात है कि ऐसा जब कोई भी संकट आता है तो हम लोग
पहला तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी 2 महीना देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से घर में रहे, तो एक्सेप्ट कि दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड ध्यान दे रहा है, लेकिन हमने तो पहला एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हुआ है भाई, हुआ है। दूसरी बात, जब एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी बात होता है एडेप्शन, एडॉप्ट करना। अभी देखिए 2 महीना, आज राजू भाई हो, शाह साहब हो, कोई भी हो, 2 महीना हमने कितनी अच्छे तरह से एडॉप्ट किया है, कितने बदल हुए। ऐसा कोई बोलता था 2 महीने तुम घर में बैठ सकते हो क्या, तो हम तासों घंटों घंटे उसके ऊपर डिबेट ले सकते थे। लेकिन 2 महीना हम घर पे रहे हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, हम बाहर का नहीं खा रहे। अभी देखिए कितनी चीजें अपने में चेंज, कैसा एडप्ट हो गए। अभी आज तो अभी कोई भी वेबिनार में देखता हो, हर किसी की बियर्ड बढ़ गई है, मुस्टैच बढ़ गई है, किसके बाल बढ़ गए। और देखो ना, अपनी जरूरतें कितनी कम हो गई। अभी मुझे फॉर्मल कपड़े पहन के 2 महीना हो गया। मैंने मतलब शर्ट पैंट ट्राउजर किसको दिखाना ही नहीं, बाहर ही जाना नहीं, तो क्या करूँ। आज मेरी गाड़ी घर में 3 गाड़ियां है। जो पहले दरवाजे से बाहर आता था तो पहले गाड़ी में पैर रखता था। आज 2 महीना हो गया, 3 गाड़ियां मैं ध्यान में रख के 3-3 दिन के बाद स्टार्ट मार रहा हूँ, स्टार्टर कर लगा रहा हूँ कि भाई गाड़ी ठीक रहे। आज वॉलेट मेरे को नहीं लग रहा है, पैसा जो भी थोड़ा बहुत लगता है ग्रोसरी या कुछ खाने की चीजें हो, वो छोड़ के तो नहीं लग रहा है। घड़ी में मुझे नहीं लगता है मैंने 2 महीने में घड़ी पहनी है ना, वॉलेट रख रहा है। और घर में काम कर रहे, घर वालों के साथ में हम समय बिता रहे। मैंने ऐसे ही एक खिलौने वाले को पूछा तो उसके यहाँ टेम्पो खाली हो रहा था अभी 3 दिन पहले। तो बोला मेरे यहाँ तो बोर्ड गेम इतने बिक रहे, टेम्पो से मंगा रहा हूँ। बोर्ड गेम हर फैमिली में आते हैं, बच्चे नए नए बोर्ड गेम लेके जाते हैं। तो फैमिली के साथ में हम समय बिता रहे, अच्छा सोच रहे हैं। तो ये भी एक हम लोग एडॉप्ट हो गए। तीसरी बात होती है एक्सेप्ट, एडॉप्ट एंड इवॉल्व। इवॉल्व मतलब हम आगे कैसा बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सोच लाना, ये अभी के टाइम का हमको मिला हुआ एक मौका है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हमारी घड़ी बंद पड़ती है। तो हमारी घड़ी बंद पड़ती है, बैटरी जाती है, तो हम लोग जब नया सेल डालते हैं, नई बैटरी डालते हैं, तो क्या हम पुराने समय के साथ में घड़ी चालू करते हैं या हम लोग समय के साथ में घड़ी लगाते हैं। तो सेल डालने के बाद में समय के साथ में तो अपने को घड़ी लगानी पड़ेगी, वो रीसेट करना पड़ेगा। अभी देखिए जब मैं कितने वेबिनार देखता हूँ और बहुत न्यूज पढ़ रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये हम भूल जाएंगे हमेशा के लिए, ये इसका डिमांड ही नहीं आएगा। तो लेकिन मैंने एक वेबिनार में एक सवाल पूछा था कि क्या 2 महीने में आदमियों का स्वभाव इतना बदल जाएगा। तो वो वीटी भारद्वाज करके थे, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एकदम 2 महीने में इतने चेंजेस नहीं आ सकते। देखो आदमी की पूछ जाने को कई लाख साल लगे, तो हम लोग इमीडिएट कल से बाहर जाएंगे ही नहीं, घर में ही बैठेंगे, ऐसा सब इतना तो नहीं होगा। कुछ अच्छी चीजें जैसे अक्षत, आज हम लोग जूम में मिल रहे हैं, यही फिजिकल प्रोग्राम करने को अपने को कितनी तकलीफ थी। आज हम जूम पे, आज मैं कोई भी वेबिनार में जाता हूँ, सीनियर लोग भी आते हैं, उनके पोते उनको लॉग इन करके देते हैं, और ऑन एन एवरेज 35 to 40% हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो हम लोगों ने कितनी सारी चीजें अडॉप्ट की। अभी इवॉल्वमेंट के बारे में बात करूंगा तो और हमने अच्छा समय अपने फैमिली के साथ में घर के काम करने में, मुझे मेरे घर में क्या क्या है ये 2 महीने में पता चला। और हमको ये भी पता चला कि घर में काम कितना होता है। और जब करने लगे तो उसमें भी हमने एंजॉय किया। ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई फोर्स करने आया था। आज घर का खाना खा रहे 2 महीने से। तो लेकिन कोई कोई चीजें ऐसी हो गई जब इकोनॉमी में कि इसका कोई मिसाल ही नहीं, 100 सालों में नहीं, नहीं अभी तक नहीं है। वन ऑफ द न्यूज वाज ऑयल बिकेम -$38। ये कभी सुना है क्या कोई मार्केट में कि प्रोडक्ट की प्राइस माइनस हो जाती है। मतलब आप ऑयल उठाने के $38 देंगे, आप ऑयल उठाओ, क्योंकि उनको रखने के लिए जगह नहीं। दैट वाज वन थिंग कि ये मिसाल ही नहीं है इकोनॉमी में। कोई इकोनॉमिस्ट को पूछे कि माइनस प्राइस कैसे होता है। दूसरी बात थी अभी टेम्पल्टन के काफी प्रोडक्ट उन्होंने बंद किए। पुनीत इज अ सीए, वुड नो दैट कि देखिए आज 6 फंड इतनी बड़ी कंपनियों ने बंद किए। पैसे किधर जाने वाले नहीं है, लेकिन इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्टेड, दे पम्प्ड इन 50,000 करोड़ लिक्विडिटी। इसके लिए आज आप और हम शांत हैं।
इसी के साथ में ऐसा भी हो गया कि मैं पढ़ रहा हूँ एक एक चीजें, तो डिपॉजिट्स आर एवर टाइम हाईएस्ट। मतलब 2,80,000 करोड़ के डिपॉजिट बैंक में आए हैं मंथ ऑफ अप्रैल, और 1,20,000 करोड़ का लेंडिंग कम हो गया, तो 4 लाख करोड़ स्ट्रेट उधर के उधर उनकी लिक्विडिटी बढ़ गई। अभी देखिए वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं कि ये गेम चेंजर होने वाला है कि मुकेश भाई अंबानी, अभी अपनी तो कुवत बहुत कम है समझने में, लेकिन 78,000 करोड़ ही गॉट इन दिस टाइम, गॉट इन्वेस्टेड इन हिज कंपनी। और एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जो फेसबुक और जियो का जो फेसबुक ने जो स्टेक लिया है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर अपने बिजनेस, सबके बिजनेस के लिए होने वाला है, अच्छा होने वाला है, नॉट बैड। आई टेल यू व्हेन आई कम टू दैट। सो ऐसी ऐसी मिसालें थी नहीं जो इकोनॉमी में हुई। अभी हर कोई इकोनॉमिस्ट बोलता है, पहला इंडिया का बोलते थे -2.5% जीडीपी, 2.5% से जीडीपी ग्रोथ कम आएगी, अभी बोलते ओवरऑल -0.5% जीडीपी कम होगी। तो ये रिपोर्ट तो आते रहेंगे, पर जब हम रिपोर्ट सुनते हैं तो उसकी 100% ऑथेंटिसिटी भी नहीं, हर कोई अंदाज लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है, कोई फिगर्स के साथ में लगा रहे हैं, अपने अपना वर्जन दे रहे हैं। तो ये न्यूज पढ़ पढ़ के, जैसे कोरोना के न्यूज पढ़ पढ़ के हमको खांसी आई तो भी हर एक को लगने लगा मुझे कोरोना हुआ है, क्या नॉर्मल खांसी भी आ सकती है, वैसा ये इकोनॉमी का जब सुनते हैं तो हर एक को लगने लगता है कि क्या ये सब मेरे को होने वाला है। अरे भाई, यूएस की इकोनॉमी होगी नहीं होगी वो ठीक है, होने वाली है, इंडिया का जीडीपी कम आएगा, लेकिन ये सब मेरे को होगा ये क्यों मानने लगे हम कोई भी न्यूज पढ़ते इमीडिएटली लगता है कि ये मुझे होने वाला है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ कि ये होने वाला है क्या, काफी चीजें होने वाली है, हो रही है, पर हमने क्या करना चाहिए। मैं इस चीज को बंदी में संधि बोलता हूँ। ये सब खेल इधर है। हम लोग यदि अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगेंगे, मैं हर वेबिनार में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जब सोचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि 70 से 80 हजार थॉट्स हमारे मन में आते हैं दिन में, शायद ज्यादा भी आते होंगे, और नींद में कितने आते हैं मुझे पता नहीं है। पर जब हम ऐसा सोचते हैं तो काफी सारे थॉट्स आते और जाते हैं। तो यदि हम लोग एक डायरी अपने साथ में रखे और दिन में आधा घंटा 1 घंटा जो टाइम मिले अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में सोचे, और वो डायरी में यदि लिखे, तो लिखने से क्या होता है, थॉट को एक डिसिप्लिन आता है, एक कंटिन्यूटी आती है। आप जितना फास्ट सोचते हैं उतने फास्ट तो लिख नहीं सकते, और जब लिखते हैं तो बहुत सोच के लिखते हैं। तो ये डायरी आपके काम में आएगी, आगे भी जाके काम में आएगी कि भाई मैंने क्या सोचा था वो टाइम में, और अभी क्या यूज मुझे होने वाला है। तो अभी ये वर्ड तो बहुत कॉमन हो गए, न्यू नॉर्मल, न्यू मी। हम लोग क्यों नहीं सोचे न्यू मी, मेरे में क्या क्या बदलाव मैं ला सकता हूँ, मैं समय के साथ में कैसे चल सकता हूँ, आने वाले दिनों में मैं उसके साथ में कैसे चलूं, मैं उससे कैसे आगे जाऊं। और मैं जो पॉजिटिव लोग, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, इंडस्ट्री से बात करता हूँ, तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो तो आज बैठे हैं अगला प्लान तैयार करके। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो बोल रहे थे कि मेरा एक एक्सपेंशन प्लान, मुझे टाइम मिला है, मैंने पूरा तैयार रखा है, जैसा खुलेगा आई एम गोइंग टू इंक्रीज माय कैपेसिटी 3 टाइम्स। एक कोई मिला था, उनकी आर्किटेक्ट इज देयर, पीपल वुड लाइक टू मीट देम, दे वुड लाइक टू मीट देम। तो उन्होंने लिंक्डइन वगैरह सब ये 2 महीने में काम करके, अभी सब लोग घर में मीडिया के ऊपर है तो ध्यान भी उधर है, तो उनको सबको रीच आउट करके 40 आर्किटेक्ट की उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स की है, जैसा लॉकडाउन खुलेगा वो लोग उनको मिलने वाले हैं। पर आज अपॉइंटमेंट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। मैंने अभय जी श्री श्रीमाल का उस दिन मैं सुन रहा था, उनका तो एक प्रोडक्ट अभी 3 शिफ्ट में चल रहा है, 27 कंट्रीज में दे आर एक्सपोर्टिंग राइट नाउ। जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा था अभी के टाइम में एकदम चलने लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि मानते हैं कि ये सब चैलेंजेस है, काफी चैलेंजेस है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उसमें हमको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, खाली प्रॉब्लम सोच के कुछ फायदा नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें हम इमीडिएट करना चाहेंगे। तो अभी लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट थिंग
पहले तो हम जब दुकान खोल रहे हैं या अपनी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहे। भाई इतने कस्टमर आएंगे, तो अभी काफी मेरे रिटेल के जितने हुए लोगों ने प्लान किया है कि इतने स्क्वायर फीट में इतने कस्टमर आएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, ग्लव्स देंगे। और अभी जो गए 15 दिन में जो ज्यादा फैला है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर थे, ग्रोसरी, लिकर शॉप्स, इनके दुकानों में काफी लोगों को होने लगा है, मेडिकल शॉप्स में। तो पहली तो फिक्र हमको अपनी लेनी है कि हम किस तरह से काम करेंगे। जो थोड़े से सीनियर है, अबाउट 65, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेलिंग कि घाई मत करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े दिन रुकिए, लेट द यंगर पीपल गो। सो पहला तो हमको फिक्र करनी है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी इंडस्ट्री या कॉरपोरेट्स, ये एक सोच है जो हम ज्यादा करके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में हमारी ये सोच नहीं आती है। वो ऐसी है कि हम कभी कैश फ्लो नहीं निकालते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट अभी आपने क्या करना चाहिए, तो एक 6 महीने का कैश फ्लो निकालिए कि 6 महीने में मुझे क्या क्या खर्चे है जो मुझे करने पड़ेंगे, बिजनेस के बारे में कह रहा हूँ। तो उसमें आता है, और 6 महीने में मुझे पैसा कहाँ कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जब कैश फ्लो तैयार करेंगे तो दो चीज हो सकती है, या तो आप शांति से सो पाएंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। दूसरी बात हो सकती है कि मुझे ध्यान में आएगा मुझे चौथे महीने में प्रॉब्लम आएगा। ये जब हम खाली सोचते हैं दिन में, खाते टाइम सोते टाइम, उसका कोई फायदा नहीं। बैठ के बनाइए ना कैश फ्लो, सिंपल। मैं बड़ा वर्ड भी नहीं यूज कर रहा हूँ। 6 महीने में मुझे कैसे पैसे आएंगे और 6 महीने में मैं कैसा क्या क्या मुझे खर्चा करना पड़ेगा। इवन स्टॉक मार्केट इज एन एग्जाम्पल। जैसे मैं कह रहा था कि ऐसे मिसालें नहीं है। 42,000 से 26,000 जाके अभी 30,000 31,000 चल रहा है। तो अभी पहली बात मैं करूंगा कि मुझे खर्चे क्या क्या है। तो पहला ध्यान में आता है कि मुझे हर कोई बिजनेस में मुझे सैलरीज पे करनी है। और मैंने आज नहीं, मैंने अप्रैल के वेबिनार में बताया था कि सैलरीज जो करनी है, ये टाइम आया है सोचने का। आप आपके टीम से बात करो, जो कम पगार वाले 10,000 15,000 ठीक है, उनको आप दे दीजिए, उनका खर्चा उसके ऊपर है। लेकिन उससे ज्यादा सैलरी वाले, हर सैलरी वालों से बात करके उनको मार्च तो चलो भाई लोगों ने कैसे तो भी किया। हमने अप्रैल में हमारी कंपनी में सबसे बात की कि एक भी दिन कंपनी नहीं चली है, आपके भी खर्चे कम हो गए। तो वी गेव अ 50% कट इन अप्रैल सैलरीज। मे अगेन वी विल टेक अ डिसीजन। तो सैलरीज के बारे में सोचिए दो चीज। एक तो टीम से बात करिए, वो भी आज समझने के टाइम में है। और सीधी सी बात है, कंपनी चलेगी तो सब जीने वाले हैं। और आज आप अप्रैल का मत सोचिए, ये 2-3 महीना आपको ऐसे ही काफी विदाउट मच इनफ्लो आपको चलाना पड़ने वाला है। वो आगे का भी देखिए अप्रैल में जितना हमको डर लगता था उससे ज्यादा मई में लग रहा है, और उससे ज्यादा शायद जून में लगेगा। तो सैलरीज के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, एक बात कहूंगा। और जब मैं ये डालता हूँ तो मुझे काफी सवाल आते हैं। काफी मैं इंडस्ट्रीज में भी काम करता हूँ, उनके साथ में मेंटोरिंग करता हूँ। तो काफी इंडस्ट्रीज पहले से उन्होंने 70-30 का फॉर्मूला लगाया है। तो जो आपका मैनेजरियल स्टाफ है, जो बिजनेस डेवलप करता है, जो बिजनेस में अपने साथ में है, नॉट दी लोअर लेवल, जिनको समझता नहीं कि बिजनेस क्या है, कैसा हो रहा है, तो उनके साथ में 70% फिक्स्ड और 30% इज लिंक्ड टू द सेल्स। भैया सेल बढ़ गया, तू 100 की जगह तेरे को 110 मिलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर बिजनेस नहीं हुआ तो 100 के जगह 80 मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो 70 मिलेगा। तो ये टाइम आया है, आप सोचिए, हर एक इसमें जाइए, सैलरी में कौन सा किसको कितना है, और अभी से यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मेरे हो रही क्या? नहीं सर, इट्स क्लियर, नो इश्यूज। ओके ओके।
हमको सैलरी की तरफ देखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक टाइम मिला है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूँ कि आदमियों को कम करो, आपको सोचना पड़ेगा। मैं हर एक को पूछता हूँ कि व्हाट इज द सैलरी कॉस्ट टू योर सेल्स, किसकी 30% है, किसकी 20% है। तो आप देखिए कि आपके इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स है, क्या मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है, और सालों साल चल रहा है, हम लोग एक कंफर्ट जोन में है। आज हम डिस्कम्फर्ट में आए हैं तो उसकी हम एडवांटेज ले ले, हम नहीं सोच लाएंगे, हम हर चीज में एक बार देखेंगे तो मेरी सैलरी कॉस्ट ज्यादा है क्या, ये कंफर्ट जोन बाहर आने का ये सही मौका है। और आज तक कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी कंफर्ट जोन से बाहर आती है तभी उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम तो व्यापारी है, हम अपने अक्ल से और नसीब से आए दुनिया में, तो हम तो संभालेंगे, कोई सवाल ही नहीं। और मेरा पहला चैलेंज सबको ये है कि इकोनॉमी कुछ भी होने दो, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि मेरा धंधा कम होगा। हम लोग ये एक बार आपने मन में माना कि मेरा ये साल खराब जाने वाला है, मैं 50% कम होगा, तो बात खत्म, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। आप क्यों नहीं ऐसा सोचते, दुनिया कुछ भी होने दो, मेरे बिजनेस में मैं ये साल बिजनेस कम होने नहीं दूंगा, मैं ज्यादा करके उससे ज्यादा भी ग्रोथ लाऊंगा। एक बार ये सोच आई तो फिर आपको रास्ते दिखेंगे। जब आप ये मानोगे कि मेरा तो बिजनेस 50% होने वाला है, फिर तो सवाल ही नहीं कोई सोल्यूशन आने का। और जब 50% मानोगे तो आप 60% गिरोगे। आप कुछ नहीं होने वाला मान के चलो तो मैं बिलीव मी अगेन, आई एम टेलिंग यू, हमने डिमोनेटाइजेशन झेला है, हमने जीएसटी झेला है, तभी कहाँ हुआ। दुनिया तो बोलती थी ऐसा होगा वैसा होगा, हम बाहर आए उससे। तो हम लोग ये चैलेंज लेंगे कि हम उससे ज्यादा धंधा करेंगे। दूसरी बात है रेंट का। तो इसी को लोग कहते हैं, मैं जो रीसेट बोल रहा हूँ ना घड़ी, उसको कंपनियां री इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि हर एक चीज की तरफ हम वापस देखें और हर चीज में कैसा एफिशिएंसी लाए, कॉस्ट सेंटर कैसे कम करे, इनकम रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, इसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मैं जो संधि बोल रहा हूँ, ये सोचने का मौका आया है, सोचने का टाइम मिला है। आज घर पे फादर सन सब बैठे हैं, क्यों नहीं 1 घंटा हम सब साथ में बैठ के सोचे क्या कर सकते हैं। तो ये री इंजीनियरिंग करने का मौका मिला है। दूसरी कॉस्ट सेंटर है रेंट। तो जिनकी जगह रेंट पे है, तो उन्होंने लैंड ओनर के साथ में बात करना चाहिए, यही टाइम है, वो भी समझ रहे हैं। तो भैया कि ये रेंट अभी लॉकडाउन पीरियड में, चलो भाई कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो थोड़े में जितना पैसा बाहर जाता है आप रोना सीखो। रो, हर एक रुपए के लिए रोना पड़ेगा। रोना मतलब मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, उससे बात करो, उसको रिक्वेस्ट करो। कम से कम लॉकडाउन पीरियड का भी मैंने काफी जगह, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा कि कम से कम आपने फोन तो भी किया, बाकी तो कस्टमर पेमेंट भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। तो हमने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि लॉकडाउन पीरियड में 50-50 हम 50% हम बेयर करेंगे, 50% वो बेयर करेंगे। हो सकता है आपका लैंडलॉर्ड मान जाए। और अभी जो चल रहा है, ये फोर्स मेजर में आता है क्या, एक्ट ऑफ गॉड में आता है क्या, कोर्ट में किसको जाना है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन दिए कि वेजेस आल्सो इज नॉट कंपल्सरी, फाइनली दी गई। इवन रेंट इज अ वेवर, कैनॉट बी अ वेवर, इट कैन बी डिफर्ड। तो हमको रेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। और एक ट्रेंड आने जा रहा है, अभी जितने रिटेल है, शायद आने वाले दिनों में रेंट विल बी अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। धंधा हुआ तो इतना रेंट मिलेगा, नहीं तो कम मिलेगा। ये एक ट्रेंड आने जा रहा है। और दूसरा, जैसे 2008 के मंदी के बाद में हुआ था, रेंट रीनेगोशिएट हुए थे। तो जब बिजनेस खुलेंगे, आप भी ओनर के पास जाएंगे, भैया इतना धंधा नहीं हो रहा है, आप रेंट कितना कम कर सकते हो। तो ये होने वाला है। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो टाइम में जगह खाली कर दी। तो ओनर भी सोचेगा आप जैसा अच्छा आदमी है, क्यों मैं दूसरे के पास जाऊँ, चलो वे रेंट कम करके देते हैं। उसी के साथ में हमारे लोगों को रेंट आता भी है। अभी आता है तो भी आपको संभालना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। उसको भी आज टाइम ऐसा है कि ये टाइम है एक दूसरे से बात करने का। आपका भी रेंट कम आने का चांस है। आप जब 6 महीने का हिसाब लगाओगे ना, तो आपके काफी लोगों के इनकम साइड में रेंट है, काफी लोगों एक्सपेंडिचर साइड में, काफी लोगों के इनकम साइड में रेंट है।
तो इनकम साइड में आप सोचिए कि कितना रेंट मुझे कम आने का चांस है, मैं लॉकडाउन पीरियड का आधा कर दूंगा। तीसरी बात है ईएमआई का। अभी ईएमआई का उन्होंने मॉरेटोरियम दिया, 3 महीने का 6 महीना किया, लेकिन एक बात क्लियर है, अभी तक जितने अनाउंसमेंट मैंने सुने, कोई फुकट का अनाउंसमेंट नहीं है, हर एक में ब्याज चालू है। इस ये ईएमआई आपके डिफर हो जाएंगे, आप कब भरते हो तब तक तो उसके ऊपर ब्याज लगने वाला है। सो यदि आपके कैश फ्लो में बढ़ता है तो आप ईएमआई चुकता करिए, उसका मोरेटोरियम मत लीजिए यदि पॉसिबल है तो। क्रेडिट कार्ड के बिल तो अपने को कहने की जरूरत नहीं, हम लोग इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन कोई ड्यू है तो भरिए क्योंकि इंटरेस्ट इनका बहुत भारी है। सो अभी जो लिक्विडिटी की बात की, फिर और एक बात है, मैं जो बोल रहा हूँ कॉस्ट सेंटर, दो चीज अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में होते हैं। एक है कि हम लोग कैश फ्लो कभी निकालते नहीं, और दूसरा मेरे कोई भाई यहाँ सीए भी है, तो दूसरी बात ये है, पुनीत है यहाँ पे, तो दूसरी बात ये है कि हम बिजनेसमैन का, हमारा फाइनेंस और कंपनी का फाइनेंस एक ही रहता है। कंपनी को पैसा कम पड़ा अपना डालते हैं, अपने को पैसा कम पड़ा कंपनी से निकालते हैं। हमारे मन में अपना फाइनेंस और कंपनी का फाइनेंस अलग, ये आज तक कभी हमने, और मैं जब बोल रहा हूँ मैं आप में से हूँ, ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। मैं भी बिजनेस चला रहा हूँ और मेरा भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं जैसा कंसल्टेंट हूँ, कोच हूँ, ऐसा मेरा बिजनेस है, इसके लिए मैं आपकी जबान बात कर सकता हूँ। आपको जो लगता है वो मुझे भी होता है। तो ये एग्जाम्पल एक्चुअल है जो अपने भाइयों के है। तो हमारा फाइनेंस और कंपनी का फाइनेंस एक ही है, तो थोड़ा सा इसके आगे हमने अपना एक फाइनेंस, अपना पॉकेट अलग से रखना चाहिए। आप यदि सैलरी नहीं लेते हो, हम लोग क्या सोचते हैं, कंपनी में रहने दो, पैसे पे पैसा बढ़ता है, सैलरी लेके क्या करेंगे, हम जितना भी लेते हैं खाली हाउस एक्सपेंस के विड्रॉल में लेते हैं। क्या हम अपना हर महीने का विड्रॉल लेके अपना एक पोर्टफोलियो, अपना फाइनेंस अलग से रखे, जो कंपनियों में होता है, वहां चेयरमैन हो, सीईओ, वो अपना पैसा और कंपनी का पैसा थोड़ी इकट्ठा करता है, अलग अलग होता है। और हम लोग डरते हैं कंपनियों से पैसा निकालने के लिए, क्योंकि हमको फिक्र है कैश फ्लो की। नहीं, इसके आगे भले कितना निकालना है आप सोचिए, लेकिन यदि मेरा पर्सनल फाइनेंस अलग होता तो मुझे एक शांति थी कि मेरे को, मेरा सब ठीक चलेगा। कंपनी को तकलीफ है लेकिन मेरा पर्सनल फैमिली ये मेरी सही चलेगी, 2 साल मेरे को कोई फिक्र नहीं है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, ये जो बंदी में संधि बोल रहा हूँ, ये मैंने किसी वेबिनार में सुना कि इसके आगे हमको टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। मतलब आपका अकाउंटिंग पैकेज, सीआरएम, आपके सब चीज, ये सब देखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा लाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी सिंपल, इतनी इजी है, इतनी सस्ते में है, लेकिन इतने साल में कर रहा नहीं किया तो मैं अभी क्या करूं। मेरा एक सेंटेंस आप ध्यान में रखिए, मैं वही बिजनेस उसी सोच के साथ में, उसी जगह में बैठ के, उसी कस्टमर के साथ में करना चाहूंगा और मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता। काफी चीजें बदली है, मानसिकता बदली है, तो आपको नई सोच लानी पड़ेगी। बिजनेस के हर एंगल में नई सोच लानी पड़ेगी। रेंट का एक मिसाल देता हूँ। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसकी रेंट जगह की बहुत भारी है और आप बाजार पेट में बैठे हो, आपके पास कस्टमर आने का कोई चांस ही नहीं है। आप, आपकी सब सर्विसेज हो, ये हो, आप होलसेलर, फोन पे काम करते हो, तो इतनी महंगी अपने को चाहिए क्या? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, रेंट मैं छोड़ सकता हूँ, या मेरी जगह में रेंट पे देके मैं कम रेंट में अच्छा ऑफिस, बड़ा ऑफिस घर के पास ले सकता हूँ क्या? सोचने का टाइम आया है। तो मैं री इंजीनियरिंग बोलता हूँ, हर एक कॉस्ट सेंटर में आप सोचिए, सोचना पड़ेगा। और एक जबरदस्त बात है जो अपने को बंदी में संधि आई है, अपनी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, हम लोग ऐसा समझिए कि काफी लोग बैंक लोन, कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल हो, टर्म लोन हो, हाउसिंग लोन हो, लेते हैं। तो अभी जो लिक्विडिटी आई है और बैंकों के जो फोन चालू हुए, मुझे 4 दिनों में 2 बैंकों के फोन आए, आपका जितना बैलेंस है हम 20% देंगे, 1 साल उसको मॉरेटोरियम देंगे, 3 साल में हम लोग 9.25% इंटरेस्ट लगाएंगे, आप पैसा ले लो। तो आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखो,
और मेरे भाई, अभी मैं और एक जगह पढ़ रहा था, 11 और 11.5% से लोग आज भी बिजनेस लोन ले रहे। मेरा टारगेट है कम से कम 8.5% पे लाऊं, हो सकता है उससे कम। 8.5% मैक्सिमम आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आनी ही चाहिए। इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग बोलते हैं ना बैंकिंग रिलेशन इंपॉर्टेंट, आई टोटली डिसएग्री। देखो, आप जिसको रिलेशन बोलते हैं ना, एक तो जिससे रिलेशन है वो नौकरी छोड़ के जाता है, तो कहाँ रह गया रिलेशन। दूसरी बात, बैंक भी जब भी कुछ भी नया स्कीम लाती है, नए कस्टमर को लाती है, इंटरेस्ट घटाते हैं नए कस्टमर के लिए, पुराने कस्टमर के लिए नहीं। मोबाइल कंपनी नई स्कीम लाती है नए कस्टमर के लिए, पुराने कस्टमर को बोलते हैं आपके लिए नहीं है। तो ये लॉकडाउन के बाद में या अभी से चालू करो, एक अच्छा है, आपके मेरे मन में हिसाब सब यहाँ रहता है, तो क्या हम उसके बारे में सोचना चालू करें। सोचना नहीं, एक टारगेट लेके चलिए कि नेक्स्ट 3 महीने में मुझे ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम लानी है, मेरे को एफिशिएंसी देखनी है मेरी कैपिटल की। और एक बात है, वर्किंग कैपिटल सबको अभी शॉर्ट होने का है। गवर्नमेंट जो एमएसएमई स्कीम दे रही है, सब लोन के माध्यम से दे रही है, फुकट कुछ नहीं। और वर्स्ट बात बोलता हूँ आपको, आपके आंख खुल जाएंगे, ट्रेडर रिटेलर को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमको क्या स्कीम मिली है गवर्नमेंट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और 7 करोड़ retailer, small and medium retailer, trader, distributor, 7 crores in this country, and not a single announcement for them. MSME में नहीं है तो किधर भी नहीं हो आप। तो हमको ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैसे नीचे लानी, इसकी तरफ देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें हैं कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना है कि मैं कॉस्ट रिडक्शन कैसे करूं। आपका माल भी 4 बार उतरता है, 4 बार चढ़ता है। आपने कभी सोचा है उसमें कितनी हमारी इनएफिशिएंसी है? हमको एफिशिएंटली करनी पड़ेगी। कम जगह में माल कैसा रख सकते हैं, कम बार चढ़ उतार करके हम माल कस्टमर तक पहुंचा कैसे सकते हैं। और ये प्रोफेशनल कुरियर कंपनी, उनकी आप देखिए, आपसे वो 10 टाइम्स एफिशिएंट है, 10 टाइम्स। जिसका आप 100 रुपए हमाली और भाड़ा लगाते रहेंगे, वो 40 रुपए में करते, 25 रुपए में करते। यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि एफिशिएंसी, तो मेरा कहना ये है कि हमको एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। वील हैव टू सी ऑल कॉस्ट सेंटर्स एक एक, और उसमें एक सिंपल प्रिंसिपल है, जब हम सैलरी देखोगे या कॉस्ट रिडक्शन करोगे, तो आपके ट्रेडिंग बैलेंस शीट में, P&L में देखिए कि 20% ऑफ द आइटम्स, मतलब 100 आइटम में से 20 आइटम में आपका 80% खर्चा हो रहा है। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, 5-10 आइटम ऐसा उठाओ कि जिसमें मेरा ज्यादा खर्चा है, उसके ऊपर काम करो। पूरे 100 आइटम पे काम करने की जरूरत नहीं है। इसको पैरेटोज लॉ बोलते हैं, ये सब जगह लागू होता है, 80-20 बोलते हैं या पैरेटोज लॉ। ये हो गए खर्चे की बात। तो हमको 6 महीने में क्या क्या खर्चा होने वाला है। अभी दूसरी बात है, 6 महीने में मेरी रेवेन्यू साइड पे क्या क्या आने का चांस है। तो रेवेन्यू साइड में मेरा सेल्स कैसे होने वाला है। तो यदि मुझे मालूम है, अभी जो रिटेलर है वो राह देखते बैठेगा। और आप देख लीजिए, आज मेरी बात सुन लीजिएगा, जैसा लॉकडाउन खुलेगा, मॉल और ऑनलाइन ऐसे स्कीम डालेंगे कि कोई हिसाब नहीं। ट्रेडिशनल रिटेलर का दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो हमारा जो व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल है, वो हमेशा स्टॉक और उधारी में अटका हुआ है। स्टॉक तो व्यापारियों को इतनी खुशी आती है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ विजिट को, तो बोलते देखो मेरे पास कितना स्टॉक है। स्टॉक रखना अच्छा है, लेकिन कितना स्टॉक है, क्या हमारी सिस्टम हमको बता रही है कि मेरे पास डेड स्टॉक क्या है, स्लो मूविंग स्टॉक क्या है। मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, सुबह उठते ही आपके सिस्टम में बताना चाहिए इतना दिन ये स्टॉक हो गया। मैंने एक कार का एग्जांपल हमेशा देता हूँ, पेड अप स्टॉक ऑफ 1 कार ऑफ 1 ब्रांड, 21 दिन यदि कार वो पेड अप घर में रहती है तो नफा गया, मतलब वो भांडवल खा रहा है। इट्स ईटिंग योर कैपिटल, कैन यू बिलीव दिस। और हम व्यापारियों को खुशी है, इमोशनली अटैच टू द स्टॉक। और ये मॉल और ऑर्गेनाइज रिटेल, दे आर नॉट इमोशनली अटैच। मतलब मेरे 1 साल के बाद में यदि मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं, तो उसकी आज की कीमत 70 रुपए है। तो मैं वो साल के बाद 1 रुपए कलेक्ट करने वाला हूँ, मैं 70 पैसे में बेच सकता हूँ क्या आज? ये डिसीजन हम लेने को
इमोशन आते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये माल आया है, अभी जाएगा, जरूर जाएगा। तो हमको स्टॉक से पैसा निकालना पड़ेगा। डेड स्टॉक हो, आपका स्क्रैप हो, सब सब निकालिए, उसमें पैसा आपका निकलेगा। दूसरी बात, उधारी तो मैं तो जितना बात करूं कम है। इस हर चीज के ऊपर आर्टिकल लिखा है। देखिए, बिजनेस उधारी के सिवाय नहीं होता है, मानता हूँ। लेकिन उधारी किस बात की? और मैं पूछता हूँ कि आपकी उधारी बिक रही है या माल बिक रहा है? यदि उधारी बिक रहे तो फिर फाइनेंस का धंधा करो ना, फिर माल क्यों बेच रहे हो? और मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि क्या बैंक आपका माल बेचती है? क्या नहीं? फिर आप बैंक का धंधा क्यों कर रहे हो? 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 60 दिन, उसके ऊपर यदि उधारी है तो मेरा तो ये सवाल है कि आपका बिजनेस चल रहा है कि आप फाइनेंस का काम कर रहे हो? तो आपका पैसा उधारी में भी अटका है। अभी आप अच्छे कस्टमर से बात करना चालू करो। मैं बोल रहा हूँ, रोना चालू करो, रिक्वेस्ट करो। 10 में से 3 व्यापारी, 4 व्यापारी 25%, 50% देंगे, और अच्छी तरह से, रिलेशन खराब ना होते हुए। तो ये आपको वर्किंग कैपिटल से आपका फाइनेंस जो आप कैश फ्लो करोगे उसमें आप लिख सकते हैं। अभी बात रही सेल की, तो मैं अभी देखो, मैंने जो कहा था कि फेसबुक जियो में आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मैं हमेशा सबको पूछता हूँ, मेरे आप एक 100 कस्टमर का मेरे को डिटेल बताओ, डेटा कितनी बार आया, साल में कितनी बार लिया, कितने का माल लिया, कौन से महीने में नहीं आया, उसकी उम्र क्या है, उसका अनुमान क्या है, उसकी इनकम कितनी रहेगी, वो और क्या क्या लेगा। यह अपने को इतने साल काम करके किसी के पास डेटा नहीं है। और यही बात आज फेसबुक जियो साथ में जब आएंगे तो उनके पास आपका मेरा सब कस्टमर का डेटा पूरा जाएगा। चकोर गांधी कितने बजे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या खर्चा करते हैं, कहाँ फॉरेन जाके आए, कौन सी गाड़ी ली। सर आपका आवाज कट हो रहा है, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? या ओके, सॉरी। कैन यू हियर नाउ प्रॉपर्ली? कैन यू हियर अक्षत? Yes, sir. Yes, no issues. ओके। सो फेसबुक के पास जियो और फेसबुक के पास में आपके सबके मेरे डेटा उनके पास रहने वाला है, और हमारे कस्टमर का डेटा हमारे पास नहीं। दे विल चेंज द वे कस्टमर्स आर बाइंग। पर अपने रिटेलर होलसेलर को एक मौका आने वाला है कि आपकी इन्वेंट्री वो यूज करेंगे। आपको एडिशनल धंधा उनके प्लेटफॉर्म पे आएगा। आप ही के ऊपर बिल्डिंग में रहने वाला प्लेटफॉर्म पे उनके मंगाएगा, आप जाके माल देके आओगे। क्योंकि हमको ऑनलाइन जाना इतना आसान नहीं था। पर इतनी बड़ा चेंज आने वाला है, तो कस्टमर, पहले बात तो एक, मैं और कौन से कस्टमर जोड़ सकता हूँ, मैं नए मार्केट में जा सकता हूँ, उसी मार्केट में मैं नया प्रोडक्ट क्या ला सकता हूँ, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। मेरे को कस्टमर को लाना पड़ेगा, मेरे को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अभी इतना 2 महीने से लॉकडाउन में है, हम लोगों ने, कितने लोगों ने कोशिश की कि हम कस्टमर के सामने आए, फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। आप मेरे से ज्यादा जानते हो। और इतना सस्ता है ये मीडिया, फेसबुक, बिलीव मी। फेसबुक, इंस्टा में एक वेबिनार अटेंड कर रहा था जीतो का, तो वहाँ ये सब यंगस्टर्स थे। तो फेसबुक इंडिया की तरफ और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की तरफ इतना स्ट्रांगली देख रहा है कि पूछिए मत। और हम लोग कस्टमर को कैसे सामने जाए, वहां कैसे पहुंचे। कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं उसके यहाँ कैसे पहुंचू, उसको क्या मैं 4 पोस्ट डालूं, मैं उसके आंखों के सामने कैसे रहूं, मैं उसको एक मैसेज की दुकान खुल रहा है। मेरे को काफी दुकानों को अच्छा लगा, जहां पे भी मैं जाके आया था उनका एक मैसेज आया कि वी हैव स्टार्टेड, वी आर टेकिंग केयर। तो उन्होंने एक याद तो दिलाई मुझे। तो हमको नए मार्केट में जाना पॉसिबल है तो नए मार्केट में जाएंगे, नया प्रोडक्ट लाना है उसी मार्केट में तो वो लाएंगे। पर हमको कस्टमर कैसा लाना है और हमारा रेवेन्यू साइड कैसे बढ़ाना है देखना पड़ेगा। क्या स्कीम ला सकते हैं, क्या नया लॉन्च कर सकते हैं। आप देखो, बैठ के नहीं चलने वाला है। कस्टमर का राह देखोगे तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि जिनकी दुकानें अभी खुली है, कस्टमर बहुत कम आ रहा है। आ रहा है तो भी स्पेसिफिक चीजों के लिए। मेरे एक रिटेल में होजियरी के एसोसिएशन में किया था, उसने, वो आदमी इतना तेज था, तभी बोला था सर मैंने इनरवेयर का माल सब भरा है, लोग आएंगे तो पहला इनरवेयर लेने को आएंगे। और सच में आज जो कस्टमर रिटेल में आ रहा है वो ट्रैक पैंट, टी शर्ट्स एंड योर इनरवेयर के लिए ज्यादा आ रहा है। सो
ये एक बात है कि हमको कस्टमर लाना तो पड़ेगा। कैसा लाएंगे आप सोचो, हम कैसा पहुंचेंगे सोचो, उसको कैसे हम प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे बाय करने के लिए, और कहाँ कस्टमर बैठा है, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ। यहाँ सोशल मीडिया, ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन बेचना इतना आसान नहीं, पर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस तो आसान है, करना पड़ेगा आपको। तो ये हम लोग रेवेन्यू साइड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी एक बात है कि ये एक टाइम मिला है हमको सोचने का, कि काफी दिन से मैं सोच रहा होता हूँ कि कुछ नया करूँ। अभी जो 60s में है, जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर की फैमिली का एक नया बंदा आया है, नया मेंबर आया है, और हम लोग 2 लोग 3 लोग एक ही दुकान में बैठे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नया लाइन खोजे, तो अभी टाइम है नया लाइन खोजने का। मैं आपको 2-3 चीजें इतनी मोटिवेटिंग बताता हूँ कि इंडिया is looked as a major country for business. Whole world is watching India. Whole world is watching India. दूसरा, मोदी जी का अभी कोशिश है, जो पैकेजेस, जो अनाउंसमेंट है, they will promote India as a center for manufacturing. अभी उस दिन जीतो में मैं सुन रहा था, अभय जी श्री श्रीमाल थे, तो अफ्रीका एंड इंडिया आर गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्शन हब। दूसरी बात, शुरुआत वहीं से हुई थी, अक्षत कह रहा था कि इंडिया इज अ यंग कंट्री बॉस, एंड आई विल टेल यू वन स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज, इंडिया इज अ सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी। इंडिया इज अ सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन हर एक चीज का इतना है। इंडिया में बिजनेस समंदर जैसा है, तुम्हारे में जितनी हिम्मत है पियो। लेकिन आप बैठो बोलोगे कि मैं कोल्हापुर ही नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं यही दुकान में बैठूंगा, मेरे पास कस्टमर आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोल्हापुर छोड़ो, आपको तो पहुंचना पड़ेगा। और जो सेक्टर खुल रहे हैं, वो हमेशा मुझे सवाल आते हैं, फार्मा सेक्टर, अभय जी श्री श्रीमाल, वो तो कहते थे, उन्होंने एक सैनिटाइजर बनाया नैनो पार्टिकल के साथ में, वो इतना टेक ऑफ नहीं हुआ था, अभी 3 शिफ्ट में 27 कंट्रीज इज एक्सपोर्टिंग। सो फार्मा, हेल्थ केयर, फूड आइटम, ये सब में कंजम्पशन इतना है कि पूछो मत। ये कुछ मैं ऐसे मिसाल के तौर से दे रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज में धंधा बहुत जबरदस्त है। हमारे सेलो वाले प्रदीप जी राठौड़, देखिए उनकी जर्नी क्या है, पर इन्होंने कुछ किया है, कस्टमर को चाहिए वो दिया है। तो अभी जो बिजनेसेस इस पॉज में, जिसका कंजम्पशन हुआ लेकिन पाइपलाइन खाली थी, उनके बिजनेस इमीडिएट चलने लगे। मेरे बेटे की पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, जो इसेंशियल आइटम में लगते हैं। इसेंशियल आइटम का कंजम्पशन तो होते रहा, लेकिन पैकेजिंग बंद था। जैसे चालू हो गया, इतना डिमांड आया। हर एक बिजनेस में नहीं आएगा, लेकिन कोई कोई बिजनेस में, अभी देखिए हम लोग होटल में नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, पर वो हमारा खर्चा, ग्रोसरी वाले को धंधा मिला कि नहीं? हमारे कॉर्नर के ग्रोसरी, क्या डीमार्ट का देखो, ईयर ऑन ईयर 40-45% एक्स्ट्रा रेवेन्यू है उनका, तो ये बिजनेस उनको मिला। तो बिजनेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक का धंधा दूसरे को मिल रहा है। मेरा कहना है कि रेवेन्यू साइड में हमको चैलेंज है, हमको लाना पड़ेगा। आप बैठ नहीं सकते, और जिस दिन हाथ पैर हिलाओगे अभी से, आपको आएगा, हमको लाना पड़ेगा। और आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया को आ सकता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे को आ सकता है। कैन आई रीच न्यू मार्केट्स, कैन आई गो एंड मीट न्यू कस्टमर। और एक बात जबरदस्त है आपके जनरेशन को, हमेशा लोग क्या बोलते हैं कि मेरा ये बिजनेस है और कोल्हापुर में इतना इसको डिमांड है, कोल्हापुर में नाम ले रहा हूँ। अरे भाई, तू कुछ बना रहा है तो पूरा वर्ल्ड तेरा मार्केट हो सकता है ना। आज के कनेक्टिविटी में पूरा वर्ल्ड का मार्केट हो सकता है। तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं का, क्या हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं? ये सब खेल इधर है, कंफर्ट जोन में है। अच्छा मौका मिला है कंफर्ट जोन को धक्का लगने का। नई सोच लेके उतरे तो कोई मुश्किल, मे बी यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज। मे बी मुझे ये धंधा पसंद नहीं था, लेकिन सालों से मैं करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं करते आ रहा हूँ। क्या मैं सोच सकता हूँ नया बिजनेस लाइन का? क्या मैं सोच सकता हूँ नई चीज में जाने का? तो ये सब चीजें, हाँ, अभी ऐसा है कि ठीक है, अनुमान है कि भाई जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है,
मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि लॉकडाउन खुलेगा तो क्या आप इमीडिएटली नई घड़ी खरीदो क्या? नहीं खरीदोगे। आप नई गाड़ी खरीदो क्या? नहीं खरीदोगे। पर उस दिन का फिगर है 1600 गाड़ियां मारुति की रजिस्टर हुई। लॉकडाउन खुला जैसे डीलरशिप खुली, 600 हुंडई की गाड़ियां रजिस्टर हो गई। इसका मतलब अभी कल मैं पढ़ रहा था कि पर्सनल व्हीकल कार्स विथ लेस टिकट साइज ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। मोटरसाइकिल उनका अनुमान है कि डिमांड बढ़ेगा। अभी ये अंदाज करते बैठे तो अपने को क्या है, अपना धंधा अंदाज करना है कि अपना धंधा अपना चलाना है? तो क्या सोच के हम नया बिजनेस ला सकते हैं, कस्टमर को वापस ला सकते हैं, उसको बेटर वैल्यू दे सकते हैं, हमारा कॉस्ट रिडक्शन कम कर सकते हैं। समझो मैं और अक्षत कॉम्पिटिटर हूँ और कल मैंने भाव बहुत घटा दिए, मेरा मार्जिन कम किया। अक्षत को पता ही नहीं चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉस्ट रिडक्शन किया है। तो मेरा मार्जिन तो सेफ है, लेकिन मैंने कॉस्ट रिडक्शन किया है। सो चेंज बिफोर यू आर फोर्स्ड टू। सो ये बंदी में संधि है आपको नई सोच लाने का, कस्टमर सेंट्रिक विचार करने का। ये जो प्लेटफॉर्म आने वाला है अमेजोन और जियो मार्ट का, तो अमेजोन ने और इनकी मारामारी जब होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड जियो एंड फेसबुक, तो वो मारामारी तो काफी होने वाली है। तो इसमें अब के बार रिटेलर, होलसेलर इसमें चेन में आने वाले हैं। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये सब सोच के हमको चलना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, मुझे जितने रोने वाले मिलते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, उससे ज्यादा मिलते हैं। और जब मैं सोचता हूँ वही धंधा है, वही माहौल है, एक एक आदमी क्यों अच्छा धंधा कर पा रहा है और दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो समय के साथ में बदलने को तैयार है, समय के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये मेरे कुछ विचार है। ये सिर्फ बोलने के लिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं हूँ कि मैं खाली बोल रहा हूँ ये कर सकते हैं। मेरा भी बिजनेस है और मैं आप में से हूँ। एक बार सोचा, तकलीफें आएगी क्या आएगी, कस्टमर वापस आने को टाइम लगेगा, नीड और वांट में फर्क रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एक वेबिनार में एक खासियत है कि अभी जो लग्जरी ब्रांड्स है उनके जो कस्टमर है ना, उनको तो पैसे का कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। देखिए अब सोचने की बात है, पर हर कोई अभी सोचते टाइम बोलता है कि चलो भाई क्यों अभी खर्चा करें, थोड़ा रुकेंगे, थोड़े दिन के बाद देखेंगे। ये जरूर होने वाला है, लेकिन ये बिजनेसेस चलने वाले हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक चलने वाले हैं ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा, नई सोच लानी पड़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी, नए सोच के साथ में आना पड़ेगा। और जहां एक से ज्यादा लोग एक बिजनेस में बैठे हैं, वो अलग टॉपिक है फैमिली बिजनेस का, लेकिन ये टाइम आया है नई लाइन खोजने का, नया कुछ करने का। और मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल है, जब तक कुछ, if you don't do anything difficult, if you don't do anything different and if you are not dynamic, सवाल नहीं उठता आपको पैसे मिलने का, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो unless you are doing something different, difficult and dynamic, आप देखिए there is no problem। हाँ, टाइम की बात है, ये पॉज बटन है, पॉज बटन खुल जाएगा, ये स्टॉप बटन नहीं है। इसके साथ में अक्षत, आई थिंक सो, मेरे जो विचार है या थोड़े से एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी सोचने की काबिलियत है, उस हिसाब से मैंने आपके सामने मेरे विचार रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। और यू कांट गो रॉन्ग। जिन्होंने ये सब किया है, हम 3 महीने के बाद में करेंगे और आप बोलेंगे कि इनमें से कुछ चीजें हमने की और हमको कोई तकलीफ नहीं आई। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा कहना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान है, लेकिन उसमें से मैं क्या करूंगा, ये वेबिनार होने के बाद में आपके डायरी में लिखिए। जो अच्छा लगे वो लिखिए, नहीं लिखा, नहीं, मेरे विचार नहीं पटे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप क्या करने वाले हो। खाली सुन के वेबिनार अच्छा था, बुक अच्छा था, मूवी अच्छा था, इससे कुछ दुनिया में नहीं होता। विद दिस, थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग। आप लोगों ने बहुत शांति से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सामने यहाँ आने को, मेरे विचार रखने के लिए। तो आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Yes, sir. Thank Regarding you so much, sir. question and answers, Ritika, you take the call regarding question and answers one by one.
You can go with it. Yes. Okay. Thank you, sir. It was pleasure listening to you. Yeah. It was very useful for us as well as for the viewers. सर जैसे आपने अभी कहा बिजनेस में बहुत सारे आने वाले हैं in few days, तो ऐसा कुछ है कि कौन सा बिजनेस लाइक will just shut down because of this? Which business will shut down? Yeah, Ritika? Ritika, there sir, आपने is network problem. Hello. हाँ बोलो. Yeah, actually, I want to interrupt you, Ritika. There is something. One more mic is nearby you. Your voice is echoing. So please mute that mic or get aside from the other phone. Okay, what was your question, Ritika? Am I audible? Yeah. Yeah. Sir, as you told that there are going to be changes in coming business, तो ऐसा कुछ है कि like कौन सा business will be shut down? हाँ. ऐसा कुछ होगा? नहीं, see, no business is going to shut down, but there are some perishable businesses which season has gone. Example, अभी मैंगो नहीं बिके तो वो सीजन गया. Do whatever you like, you cannot get. शादी का सीजन गया, अगला आएगा, लेकिन आज तो वो गया. ट्रैवल एंड टूरिज्म का ये सीजन गया, तो ये पेरिशेबल सीजन जो गए वो गए. इवन रेडीमेड में मेरे दोस्त है, बड़े मैन्युफैक्चरर है, तो अभी समर वेयर का सीजन गया, अभी नेक्स्ट सीजन की वो तैयारी कर रहे हैं. वो जाएगा लेकिन बाद में जाएगा. और अभी एक ट्रेंड मेरा रिटेलर दोस्त कह रहा था, वो मैन्युफैक्चरर है, कि वो यहाँ तक अभी सोचने लगे कि फैक्ट्री में इन्वेंट्री पड़ी है, अभी तक कस्टमर नहीं आ रहा है, तो वो तो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस आउटलेट को, वो तो मल्टीपल बिजनेस आउटलेट को, वो तो माल कंसाइनमेंट पे देने को तैयार है. माल बिका तो पैसा देना, माल आपके दुकान में रखो. सो दे आर चेंजिंग विद द टाइम. उसने वो बैठा नहीं रहा, मेरे घर में माल रख के क्या करूं, चल भाई तेरे इधर रख, बिका तो पैसा देना. So I don't think so, Ritika, there is a particular business which will shut down completely. But yes, some businesses, the season is gone, are perishable. One thing will shut down, Ritika. It's not a business, लेकिन जो नई सोच के साथ नहीं आएंगे और वही धंधा वहां ही जगह से करके राह देखते बैठेंगे, उनको प्रॉब्लम है. Will not shut down, but problem है. It will not be business like. Yes. Akshat, unmute yourself. Thank you, sir. Sir, और एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि ट्रेडिशनल रिटेलिंग में भी चेंजेस आने वाले हैं. हाँ. So what traditional retailers will be facing? हाँ, ट्रेडिशनल रिटेलर्स, उनको भी टेक्नोलॉजी पहले तो लानी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी किस चीज में? अभी पहला तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे, गूगल पे, ये सब लाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर में लाइक टू ट्रांजैक्ट ऑन दैट. दूसरी बात, अभी हम इमीडिएटली जो स्लो मूविंग ये जो स्टॉक है उनका, वो कैसा निकाले, क्या ऑफर दे दे, अभी से सोच के ऑफर. और जहां कॉस्ट सेंटर है, देखिए उनका रेशियो क्या है, टर्नओवर टू स्क्वायर फीट, फिर क्या फॉर्मेट में माल रख रहे हैं, फिर कितने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों की जरूरत है क्या, मैं कॉस्ट नीचे ला सकता हूँ क्या. उनको कॉस्ट रिडक्शन करके, मार्जिन कम करके माल को जल्दी रोटेट करना पड़ेगा. दे विल हैव टू चेंज एंड बिकम प्रोफेशनल. सालों से चलता है मतलब चलेगा ऐसा नहीं है. और देखिए अब उनको नए ऑफर लाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा. Yeah. Okay, with the next question, Ritika. Am I audible? Yeah. So the question is from the viewers. जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इवेंट मैनेजमेंट इज गोइंग टू सफर अ लॉट, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि कोई मतलब घूमने जाने का देखेगा या फिर कोई
का इवेंट अरेंज करने का देखेगा. What will be their situation now? What should happen? See, it is a pause button. It's not a stop button. देखिए एक मिसाल देता हूँ. दुनिया कह रही है वर्क फ्रॉम होम, बराबर है. मैं भी सुन रहा हूँ काफी टाइम से. तो वर्क फ्रॉम होम, आदमी एक्चुअली सोशल एनिमल है. वो घूमना चाहता है, वो घर से बाहर जाना चाहता है, 4 दोस्तों के साथ काम करना चाहता है, एक दूसरे से बात करना चाहता है. आज हम लॉकडाउन है, इसके लिए वर्क फ्रॉम होम है. ये पूरा दुनिया वर्क फ्रॉम होम होगा और बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम होगी, ये मुझे नहीं लगता है. टूरिज्म ट्रैवल आज आपको लगता है, देखिए बिगेस्ट एग्जांपल, दो एग्जांपल इज नॉट गुड. आज लिकर के शॉप खुले, कितनी लाइन लगी. और पहले लोग क्या बोलते थे कि आदतें छूट गई लोगों की, लिकर की आदत छूट गई. इधर तो 4 दिन तो लाइन नहीं हट रही. आज जहां पुणे में कॉफी मिलने लगी है टेक होम, स्टारबक्स में भी लोग आ रहे हैं, अंदर से टेक होम कॉफी लेते हैं, बाहर खड़ा रह के पीते हैं. सो ये सब चेंज होएगा. ट्रैवल एंड टूरिज्म, बिलीव मी, कोई आदमी दिमाग लगाए ना. मैं खुद आई ट्रैवल एटलीस्ट 3 to 4 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस इन अ ईयर. अभी नसीब से मैं बाहर किधर अटका नहीं हूँ. तो मैं तो दिवाली के टाइम में 100% जाने का प्लान कर रहा हूँ. अब के बार मैं किसी को लेके नहीं जा गया. यस, इट विल कम बैक. आदमी पूरा प्लेन से नहीं. अभी देखो फ्लाइट चालू होगी, कितने लोग जाएंगे देखो. सो व्हाट आई एम कमिंग बैक टू, आज पुणे में ट्रैफिक सिग्नल चालू है, इतनी गाड़ियां है, ट्रैफिक पुलिस है, एकदम नहीं हुए. लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म हैज लॉस्ट 1 सीजन. बट दैट डज नॉट मीन आदमी ट्रैवल एंड टूरिज्म भूल जाएंगे. आपकी शादियां दिवाली के बाद में डबल होंगी. अभी का सीजन गया, लेकिन 15 लोगों में कितने लोग शादी करने को तैयार है? वो बोलेंगे थोड़े दिन के बाद करेंगे. सो दैट सीजन विल गेट पोस्टपोन. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म बंद हो जाएगा, इवेंट मैनेजमेंट बंद हो जाएगा. कल परमिशन मिली तो जीतो के इवेंट हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आप और हम मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे? कि हम जूम पे करेंगे? एक आध मीटिंग जूम पे करेंगे, लेकिन जैसा मौका मिलेगा हम लोग वापस आ जाएंगे. क्योंकि मैन, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. ये बात मान के चलना कि ये पूरा बंद होएगा. फेसबुक बोल रहा है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम देंगे, लेकिन उसका आगे का स्टेटमेंट पढ़ो आप. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव. तो बोलता है आप दूर जाके रहो, वहां से वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन आपको सैलरी कम मिलेगी. Okay. Thank you, sir. Gautam wants to ask something. हाय सर, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा था, एक्सपोर्ट्स और इसका इंडिया में कुछ ये आएंगे, रिक्वायरमेंट्स आएंगे इंडिया के लिए, जैसे चाइना का पॉसिबिलिटी कम हो सकता है क्या धंधा का, और इंडिया में बढ़ सकता है क्या? बढ़ तो पक्का जाएगा. नॉट ओनली बिकॉज चाइना एंड जो चल रहा है उसके लिए नहीं, लेकिन एक अक्कल सब पूरी दुनिया सीख गई. जैसा एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहना डेंजरस रहता है ना, वैसे एक देश के ऊपर डिपेंड रहना पॉसिबल नहीं है. सबको अक्ल आई. सो दे वुड लाइक टू हैव अल्टरनेटिव. नाउ वेदर इंडिया विल गेट अपॉर्चुनिटी, जहां इंडिया की स्ट्रेंथ है वहां डेफिनेटली इंडिया को मौका मिलेगा. पर ऐसा नहीं कि हर इंडस्ट्री चाइना की आएगी और इंडियन को बनाने को जमेगा. सी, इंडिया चाइना की जो स्ट्रेटेजी थी, वो जरा सोचिए ना, वो क्यों सस्ता बेचते थे? अरे उधर की गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा था. वो कॉस्टिंग में यदि आप नहीं बैठे, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हमारे कितने भाई चाइना से इंपोर्ट करते हैं, काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं. एग्जैक्टली. अभी कल चाइना वही दूसरे जगह 5 रुपए महंगा है, तो लेने वाले हैं क्या? जाएंगे चाइना की तरफ? तो some industries are definitely coming to India. Depends on our government, which Modi ji is saying कि we will take this, invite them. अमेरिका की स्ट्रेटेजी है. लेकिन ये सब जो बोलते हैं ना, ये अपना एजेंडा लेके बोल रहे हैं. ट्रम्प क्या बोलते हैं, उनके मन में क्या है और उसका फायदा उनको क्या है, ये अपने को नहीं समझता. वी टेक द न्यूज बाय द फेस वैल्यू. अपॉर्चुनिटी है क्या? तो है, बट नॉट इन एवरीथिंग. इंडिया इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट, सो पीपल वांट टू कम टू इंडिया. एग्जैक्टली. So yes, opportunity है, but left, right and center India can beat China, not
immediately. नहीं, मेरा ऐसा क्वेश्चन था, हमारा एक ग्रुप है, अपना जितो वाले ही सब बंदे हैं, हम हाँ। सोच रहे हैं एक बड़ा फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करें ऐसा, तो इसके लिए कैसा रहेगा कंपेयर टू मिस, अभी जैसा भी चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है। हाँ, अभी तो ऐसा एक एग्जांपल दूंगा, एक VR फर्नीचर है सातारा के, ओके मैं चाहे तो मिलाऊंगा, मेरे एक वर्कशॉप में आए थे, कोल्हापुर में आए थे रिटेल वर्क के इसमें। तो ये तभी से मतलब दुनिया इंपोर्ट करती है, ये एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। हाँ, ग्रेट ग्रेट। पर ये सोचिए कि चाइना के जो रेट है ना भाई गौतम भाई, या वो क्यों कम है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक मैंने एंटी डंपिंग केस मैंने पढ़ी है, ओके वहां जो भाव में चाइना में फर्नीचर बिकता है ना, उससे कम भाव में वो तुमको इंडिया में दे रहे हैं। वाह। हाँ, तो वहां जो गवर्नमेंट कुछ कर रही है वो आपको कैसे पता चलेगा? और बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है गौतम भाई? अरे Okay. हजार चीजें बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? एग्जैक्टली सब खेल इधर है। हमारा पेट भरा है, दोपहर को सोचते हैं शाम तक खाना खाने के बाद में चलो भाई अपना धंधा अच्छा है। सब खेल इधर, क्यों नहीं हो सकता है? ओके थैंक यू सो मच। Okay, sir, we are having Rajat Kumar Oswal. उनका एक क्वेश्चन है। Rajat, can you go ahead? या Rajat, actually his question was that how tourism sector will suffer. Travel agents like us who have invested abroad into tourism, what phase we will have to suffer? We have currently office and cars in Dubai, Bangkok, Bali. We are afraid how we are going to pay EMIs on cars, how we are going to pay staff salary as we have removed 90% staff. see, this season is gone, but I strongly believe customers are going to come back. Don't worry, you start getting in touch with them. जिंदगी भर हम ट्रैवल नहीं करेंगे ऐसा नहीं। कल बाली का अच्छा ऑफर आया, थोड़ा अपने मन से ये सब गया, इंडिया के फिगर्स कम आने लगे। आज स्पेन ने टूरिज्म चालू किया, थाईलैंड ने समझो चालू किया। कस्टमर इज गोइंग टू कम बैक बॉस, डोंट वरी। हाँ, ये फेज में कैश फ्लो डालो, आपको कहाँ कहाँ तकलीफ है, टॉक टू योर बैंकर, टॉक टू हाउ यू कैन सर्वाइव फॉर दिस नेक्स्ट 6 months। ये सब आने वाला है, टूरिज्म इज नॉट गोइंग टू डाई, any social event is not going to die, it's a pause button, it's not a stop button। डेफिनेटली मैं खुद के ऊपर से बोलता हूँ, मैं अभी तक नहीं बाहर गया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कब एक बार सेटल होता है और मैं जाके कहीं एक 4-5 दिन का हॉलीडे ले लूं। मन में एक कहीं ना कहीं विचार तो है, कब जाऊंगा पता नहीं। आपको आप बिलीव नहीं करोगे, चलो एक अच्छा स्कीम डालो, अभी बुक करो, जाओ इतने टाइम में पीरियड में, देखो कितने कस्टमर आते हैं, नहीं आए तो बोलना मत। अच्छा, आज जाएंगे क्या? आज पक्का नहीं जाएंगे, आज तो हम घर से बाहर जाने को डर रहे हैं। हाँ, ये इसका उनको डिटेल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 महीने में मुझे क्या क्या खर्चे है, मैं क्या कम कर सकता हूँ। 6 महीना मेरा धंधा बिल्कुल समझो 3 महीना 0, चौथे महीने में 10%, 5वें महीने में 20%, छठे महीने में 30% आएगा, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ये बात है। Okay. Moving ahead, we are having one more question is like, what will be the future of wedding card business? See, I have a client in Pune who is a wedding card business. See, specifically, unless I know more details about your business, but believe me, now we are going to learn to live with Corona. मुझे जो समझ में आता है, कोरोना खत्म होगा और फिगर्स कल से 0 आएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर things are going to change। पर दिवाली के सीजन में वापस, हाँ, वैसे भी already many of them are going on WhatsApp invitation। Yeah, already that change has come, so wedding card will not vanish, depends how you do business, what new you get, what new you do। और अभी 100 वेडिंग कार्ड वाले हैं, मेरे पास अलग क्या है, मैं क्या करूं, मेरा खर्चा कैसे कम करूं, मैं
उनको जाके घर पे अपॉइंटमेंट लेके कार्ड दिखा सकता हूँ क्या? ये काफी चीजें है। अरे you'll be surprised, Akshat. I was there on homeopathic doctors. कुछ 250 डॉक्टर्स थे होम्योपैथी. They had invited me to speak along with some person who was doing online courses for them. So एक होम्योपैथी डॉक्टर जब हम बात करने लगे तो होम्योपैथी डॉक्टर को कितनी अपॉर्चुनिटी है आज ऑनलाइन पेशेंट को कंसल्टेशन देने की, है कि नहीं है? मुझे बताओ. Yes. And they need to see the patient, they need to understand the symptom. And there were doctors from Dubai, North India. पर सोचा ही नहीं कभी. सादा डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है, उसका एक ऐप के ऊपर क्यों अपॉइंटमेंट नहीं आ सकते? 10 मिनट लेट होने वाला है तो क्यों एक मैसेज नहीं जा सकता है? क्यों एक थैंकिंग मैसेज नहीं जा सकता है कि गुड यू विजिटेड? पर ये हमको जरूर नहीं लगती है ना. जिसका चलता है उसको तो बिल्कुल जरूर नहीं चलता है वो भी नहीं करता. Right. So that means service is a very important point, like a kind gesture type. You know. Think differently. Customer is changing. How can Yeah, I right. offer him better service? Where is he? How does he eat? How does he spend money? ये सब बातें हैं. अभी रेस्टोरेंट लोग पूछते हैं, रेस्टोरेंट के आज वर्कर्स गए हैं और गवर्नमेंट जिस दिन चालू करेगा, they will get back business, boss. They will get back business. आज आप बोल रहे मॉल में नहीं जाओगे, मॉल चालू होके 8 दिन होने दीजिए, आप कितने दिन घर पे बैठते हैं मेरे को बोलो. आज हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजोन प्राइम देख रहे हैं, यस अभी आज देख रहे हैं. थिएटर चालू होंगे तो 8-15 दिन के बाद जब यहाँ से डर जाएगा ना, सब चलेगा. Definitely. Okay, Mohina, we are having Amol Shah with us. He is having one question. Yeah. Amol, can you hear me? Sorry, we are having Praveen Ranka. And there is one Sayar Sancheti also. He is raising his hand. Yeah. Yeah. Just Praveen a second. गुड इवनिंग चतुर जी. प्रवीण जी कैसे है? बस बढ़िया. शायद आई होप यू रिमेम्बर मी. वी मेट इन विजयवाड़ा. या बहुत ही कम टाइम था आपको सुनने में, बट बहुत सी बातें आपसे सीखने तो मिली. या यू आर एट विजयवाड़ा ना? या आई फ्रॉम जीतो विजयवाड़ा चैप्टर. Yes. Wonderful chapter. Guntur and Vijayawada, I can never forget. Wonderful. Thank you very much, sir. Yeah. So a lot of webinars I have attended, our Jito webinars and all, and over the lot of few days I'm hearing this thing that everybody is talking about new business, new sector. हर कोई बोलता है जो अपने बिजनेस में सेट है, जो अपने बिजनेस में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में भी है, एक रिच वर्ड बन गया है कि भाई नया बिजनेस क्या है, नया सेक्टर क्या है, किस में जाना चाहिए. बट ऐसा जरूरी नहीं है मुझे लगता है. आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग. सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई जो बिजनेस में आप ऑलरेडी हो, सेक्टर में हो, उस सेक्टर को किस तरह से आप कोविड में, पोस्ट कोविड में आप डेवलप कर सके, उस चीज पे आप फोकस करें. Exactly. If you can develop your business, that's what I'm talking. Not necessary to go and find a new business. If your business has scope, why not go global? आप, मैं विजयवाड़ा में बैठा हूँ और मैं विजयवाड़ा में ही धंधा करना चाहता हूँ, इसको विजन नहीं बोलते ना. सही बात. आपका what business you are in? We are FMCG distributors. FMCG distributor. I have a very different notion about distribution. We can connect offline. We can talk. Yeah. Boss Praveen ji, then think of your own product. Yeah. Get it manufactured, branded, sell it globally. Okay. Distribution, FMCG distribution, you are at the mercy of the company. Yes, 100%. I can talk endlessly about it, written an article. I am totally against distribution agency. But against in the sense, जिसका अच्छा चल रहा है ठीक है, पर दुनिया में दूसरे का माल बेच के कोई बड़ा नहीं हुआ है. आपकी एनर्जी, आपका दिमाग, you are wasting and you are young enough. खुद का एक प्रोडक्ट लाओ. आप 100 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बॉस, गो ग्लोबल.
Yeah, it's a family business and for the last 50 years. So let family do it. You can think of something else. Boss, I cannot go wrong. I've been a distributor for 10 companies. Yes, their experiences I can share offline with you. Yeah, You're absolutely right. Because I'm just telling you, daring to tell you, because you are young. You are young, and that's why I'm saying. Don't mind. Don't mind. No, you're absolutely right, sir. And I cannot go wrong. I can give you 100 examples over there. Okay. Thank you. Thank you very much. Yes. We have an ancillary business also, that is furniture. What in furniture? We supply for this one storage systems. Okay. Storage racks. Storage racks, modular furniture. Boss, endless hai. Go global with your modular furniture. Okay. That's the need of the hour now. No one wants carpenters to come and work at home. Okay. अरे ये खुद का प्रोडक्ट खुद के बिजनेस पे ध्यान दो. ये दूसरे का बेच के you are always at their mercy. Okay. I want to add one point in this. Can I? ज्यादा बिजनेस करोगे तो एक दिन बोलेंगे कि और एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए. कम करोगे तो भी बोलते हैं कि और एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए. Absolutely, you're right, sir. Sorry. Chako sir, I want to add one point in same line what you are informed just now. Who speaking? Neeraj Shah. Okay. FMCG रिगार्डिंग जो आप बोल रहे थे अभी, तो मैं उसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले चुका है हम कि आई वाज द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर आइडिया, एयरटेल फॉर लास्ट 8 to 10 years, and every time they have bifurcated our area. Once I reached 50 lakh 60 lakh rupees business, they have started cutting the areas. They have brought back me to the 5 lakh rupees only. So 2016 I have decided to shut down all FMCG distribution, and I launched my own app through online recharge portal. Like right now all are using PhonePe, Google Pay, like that. So I have launched it in 2009, and we are working on that only. So this is the exact example whatever you have told. FMCG distribution doesn't have any that much future. I also agree. I will not get into that more, पर आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आपको लॉयल्टी सिखाते हैं. बराबर है? ऐसा लॉयल होना है. जो आदमी लॉयल्टी सिखाता है वो अगले महीने में दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है. एग्जैक्टली. या फिर वो कंपनी खुद को बेच देती है. यस. वो लॉयल्टी कहाँ गई? अभी कोई कंपनी दूसरी ले लेती है तो आपकी इतनी सालों की लॉयल्टी कहाँ गई? Anyways, what I would think is, Praveen ji, if you can come with your own product. Yeah, हमारा experience है. We were the one with you must be knowing MTR. We were the one who launched MTR. And they sold it to a Norwegian company. Yes. यहाँ गौतम भाव संचिती है क्या? गौतम भाव है शायद. गौतम भाव अनम्यूट करिए आप. अनम्यूट करिए गौतम भाव को. कैन यू डू दैट? सुन नहीं पा रहे हैं. He was raising his hand. No, I think they have there was further one question till he comes. Want to ask how staff are going to suffer without job. See, job industry will definitely, jobs will come under pressure. People will lose jobs, will have to take reduction. So any business which depends, whose customer is the employee. I am worried about one more thing. कल को यूएस में जॉब जाने लगे अपने बच्चों के, जो H1B में है, या वो जब इंडिया आएंगे, या ऑलरेडी देखिए जो रेमिटेंस केरला में आता है, जो लड़के जो लोग वहाँ है 46% से डाउन हो गया है. तो यदि our start losing jobs in the US, यहाँ के 5 लोगों की फैमिली उसके एक के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये एक होने का चांस है. I can't deny that. And jobs will come under pressure. Everyone is announcing 20% reduction, 30% reduction. So this is going to come. Yeah. I will put my mobile number and email on the chat box. Yeah, Gautam Bhau कुछ कहना चाहते हैं. जय जिनेंद्र चकोर भाई. हाँ बोलिए ना, बोलिए. आप हमारे गुरु हो. नहीं, आपने यंग लोगों को तो सब आइडिया दे दिया.
अब हम लोग हो गए सीनियर, हाँ, हाथ में कुछ है नहीं, बिजनेस तो कर रहे हैं। अब हाँ, ये सब टेक्नोलॉजी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टेक्नोलॉजी तो अभी ऑनलाइन का काम, अगर ऑनलाइन मेरे को पेमेंट करना है वो भी नहीं जमता है। हाँ, तो ऐसे आदमी के लिए क्या कुछ तो भी एक हाँ, कुछ तो भी ट्रेनिंग्स हाँ। ऑनलाइन क्यों नहीं होती है? आपने चालू करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गौतम बाबू सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है औरंगाबाद के, और बीजेएस का बहुत काम करते हैं और हमारे गुरु है। तो ऐसा है कि गौतम बाबू आप जैसे ने तो यंग बच्चे एसोसिएट करके लेने चाहिए। वो आपके तो कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? हाँ। यस यस। और देखिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं रहती, एटीट्यूड रहती है। ट्रेनिंग कहीं पे भी होना है। हाँ, तो कहीं पे भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक कोर्सेरा और भी साइट्स है, हाँ। दुनिया के 110 यूनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे कोर्स फ्री में है। ओके। और आप आज समझो, आज जमा आपने क्लास किया, 8 दिन नहीं जमा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके आगे के वापस सीख सकते हैं। और थोड़ा पेमेंट किया तो सर्टिफिकेट भी मिलता है और आसानी से सीख सकते हैं। ओके। तो कहाँ अवेलेबल है? समंदर है गौतम बाबू, खाली सीखना चालू करो। ओके ओके, थैंक यू। बाकी यस यस। या रितिका? Yes, sir. Sir, I wanted to ask you one more question. कि आपने क्या? बोला ना कि अमेरिका में जब जॉब्स जा रहे हैं अभी, अपने लोगों के जॉब जा सकते हैं, they can come back here, right, हाँ, sir? तो फिर जो अभी इधर महाराष्ट्र में या फिर ओवरऑल वर्कर्स थे इंडिया में, हाँ, जो अभी मतलब मेट्रो सिटीज छोड़ के गए उनके ऑफिस, हाँ, so there are like less chances of they coming back again because they were not treated well जब ये सब चालू हुआ, they had to walk and everything. तो फिर अगर वो वापस नहीं आए तो इधर के काम का क्या होगा सर? इसको 100% राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता है, बट आई विल ट्राई एंड आंसर व्हाट आई थिंक, राइट रितिका? देखिए, वो आए क्यों यहाँ पे? व्हाई वर दे वर्किंग इन महाराष्ट्र? अच्छा, ये लोग जो आए हैं वो 20-25 सालों में आए हुए, बेचारे जाना चाहते 8 दिन में, क्या करेगा गवर्नमेंट? 20-25 सालों में जो माइग्रेट हुए हैं वो 8 दिन में जाना चाहेंगे, तो तकलीफ तो आने वाली। दूसरी बात, वहां जॉब्स नहीं है। मैं अभी एक पैरेलल एग्जांपल दूंगा। अमेरिका में जो रहने वाला है, जॉब करने वाला इंडिया में आएगा, तो उसकी आंख तो हमेशा अमेरिका के ऊपर रहेगी कि मेरे को आज जॉब गया, लेकिन मेरे को जिस दिन मिलेगा मैं वापस जाना चाहूंगा। तो ये लोग लेबर आए क्यों? कि वहां उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरी बात, जो लेबर गया है ना, वहां उनको आसान नहीं है। 2 हफ्ते फिर तो बेचारे क्वारंटाइन में, फिर घर पहुंचेंगे। आज उनकी रोजी रोटी रोज की है, उनको यदि कमाई बंद हो गई तो कितने दिन रहेगा? 100 में से 2 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, 90 लोग तो आज भी बोल रहे हैं कि सर घर पहुंचने दो, 15-20 दिन में हम आने को तैयार है। सो लेबर विल कम बैक। ऐसा पुणे में स्वाइन फ्लू के बाद में हुआ था, फिर राज ठाकरे जी ने फिर तभी काफी लेबर गया था, वापस आ गए। सो आएगा लेबर, unless there is employment generated, but that will take 2, 3, 4, 5 years. अभी राजस्थान में जैसे बारिश अच्छी होने लगी, एक कहते थे कि राजस्थान में खेती सुधर गई और काफी लेबर वापस नहीं आएगा। पुणे बॉम्बे में सब जगह राजस्थानी है, तो आएंगे, टाइम लगेगा 1-2 महीना, पर आएंगे। या एक्चुअली सर अभी एक ये भी निकला ना, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि एनी स्टेट, इफ एनी अदर स्टेट अदर देन यूपी इज migrating their laborers or employing their laborers, then they will have to take the permission of UP government. ऐसा एक आर्टिकल आया है। हाँ, बराबर है। यूपी गवर्नमेंट इज एक्टिव बिकॉज दे हैव सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर। ओके, ठीक है, ये सब कहने के लिए आसान है। और मैंने एक बात कही ना, हर कोई जो बोल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या लेना है, और वो इम्प्लीमेंट कैसा करना चाहते हैं। भैया इतना समझता था तो इतना लेबर आया क्यों हमारे इधर महाराष्ट्र में? राइट।
ये पूछना चाहता हूँ, और ये कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा कहना है, बट मे बी इट्स नॉट सो इजी. Right. Back to Ritika. One second. Ritika, are you there? Yes. Yeah. Is there any further questions with us? No. I Okay. guess even viewers have no more questions left. Okay, fine. So I will, they have asked me my email ID and my mobile number, which I have typed in the chat box. Yeah. Okay? Ritika? Yeah. Why is the mobile number is not being keyed? I don't know why. Anyway, you can. Okay. What I will do is, wait, I will post it if you want. No, mobile number is not coming. Email ID came. I don't know. 1 second. Okay. Okay, fine. That's they can ask you and you can give. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Akshat, Yeah. This is Sohan. I have one question. Yeah, Sohan, go ahead. Hello, sir. Yeah. Sir, I have a question that after this COVID period, will the sustainable product, will there be a requirement for sustainable product more, given the cost is more? What do you mean by sustainable product? Sustainable products as in like the products which are less harmful to environment. Yes, there will be a customer choice in thinking that. Definitely. Day by day, the younger generation is conscious about carbon footprint, eco-friendly, sustainability. Overall, there is a change in the trend, and that will definitely slightly be more in the consumer's mind. Definitely. But usually the sustainable products are costlier. So Yeah. with respect to higher cost, will there be like the market will open up after this? See, the product pricing and the total ticket size of the product makes a difference. But that shift has already come. Every time the sustainable products are slightly expensive, so people have gone for that, and that will not immediately change. I don't think so. Consumer is going to immediately always choose the cheaper product. Not necessarily. Not necessarily. They will postpone. They might postpone discretionary spending for a while till you are peaceful in your mind. But once they come back, हर कोई सस्ती चीज लेगा ऐसा नहीं है. See, all these consumer behaviors are not going to change overnight. अभी आप देखिए, ग्रोसरी आपने लाई है, खुद लाई है. I've been buying grocery in this 2 months lockdown. आप देखो हम क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे घर पे. Believe me, biscuits, and there is a survey, बिस्किट्स, कैडबरी, वेफर्स, ये जो दिखता है मैं लेके आया हूँ. ये 2 महीने में, एंड देयर इज अ सर्वे कि इसेंशियल में क्या बिक रहा है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये मतलब कंज्यूमर बिहेवियर इमीडिएटली इतना चेंज नहीं होगा. Okay, fine. Yeah. Okay, Ritika. Take the chat, please. Thank you so much, sir. It was wonderful talking. I request Jito Youth Wing Secretary, Mr. Chintan Rathod, to please conclude and give the thanks to the viewers as well as our chief guest. Well, thank you, Ritika. Thank you for this opportunity. Respected Shri Chakorji Gandhi, our chairman and entire Jito Kolhapur Youth Wing, I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this seminar such a resounding success. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to Shri Chakorji Gandhi. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. I would also like to thank our distinguished participants for making excellent presentation and making this seminar successful. I am happy to express vote of thanks. I'm happy to express vote of thanks to our host, Mr. Neeraj Shah, our moderator, Ms. Ritika Patil, who contributed in making this seminar very successful.
During this seminar, sir has made very interesting points such as Bandi Mein Sandhi. Another interesting point was about salary, rent, EMI, and maximum technology, which he preferred us all to adopt. Another point was bringing the financial stress less and also giving us the broader aspect of how the Modi government or our finance minister Nirmala Sitharaman has announced the 20 lakh crore package. So I think no one would have thought about the rent thing which sir just told us in this webinar session today. So definitely, sir, it was very helpful for all of us. And sir, I would also like to thank the way in which you answered all the questions in such a simpler way so that everybody could understand it. So thank you very much. And finally, I would also like to thank this wonderful participants who turned in such a great numbers. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Yeah, Ritika, I would like to thank Jito Youth Kolhapur. This is my first opportunity which came finally to do a program with Jito Kolhapur Youth Wing. Thanks to Akshat, thanks to Chintan, thanks to Puneet and Ritika and all the office bearers or the committee members who could do it. Thanks to all the audience. It's nearly 2 hours we have been engaged on this webinar. And it was my committed to be there till everyone, whosoever wanted to ask questions. I would like to also thank Mr. Shah, Mr. Maktoum and all senior people, or Sancheti ji, and I can't see all of them, so I can't mention everyone's name. And I have my mobile number with Akshat if you want. I cannot type it in the window. I don't know what is the technical. I have sent it, yeah. Okay, and I put my email ID also. It's always a pleasure, and I am sure you'll do great wonders after this. And you're waiting for an opportunity for the lockdown to come out and be in the market, be with the customer, and see a great growth in your business. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir.